Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic continuity, which is very important topic. Here we will discuss continuity of f of x, means function of one variable only. So a function is said to be continuous at a point C. Listen carefully. A function f of x is said to be continuous at a point C if its limit at C is equal to its functional value at C. I will repeat. A function f of x is said to be continuous at a point C if its limit at the point C is equal to functional value at C. Means limit extends to C, f of x is equal to f of C. So if this condition is satisfied, then we can say that a function f of x is continuous at the point C. तो अब देखिए, जो इस कंडीशन की लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू functional value at C, then f is said to be continuous at x is equal to C. Means अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू ये सभी इक्वल आ जाती हैं उस पॉइंट के ऊपर, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट. एंड इफ function is said to be discontinuous at the point A if these conditions are satisfied. If f of a is not defined, suppose, then function is not continuous at the point A. If left hand limit at A and right hand limit at A exist but both are not equal, then function is also discontinuous at the point A. Similarly, if left hand limit and right hand limit at the point A exist and both are also equal but these two are not equal to the functional value at A, then function is also discontinuous at the point A. So there are some types of discontinuity. First is the removable discontinuity. So removable discontinuity occur when limit of the function at the point is not equal to functional value at that point. अगर फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट के ऊपर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है, देन वी कैन से दैट फंक्शन हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट. Similarly, second is discontinuity of first kind. In this type of discontinuity, left hand limit and right hand limit at that point exist finitely but these are not equal. Means अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, मीन्स उनकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, लेकिन वो दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं. मीन्स वो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है. तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डिसकंटिन्यूटी आई है वो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है. सिमिलरली, थर्ड इज़ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही ना करें, देन अगर इन दोनों में से कोई एक भी, एटलीस्ट वन ऑफ देम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, देन वी कैन से दैट फंक्शन पोसेसेस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड एट दैट पॉइंट. सो we will represent these types of discontinuity with the help of some examples. So example number 1 is, if we have function is equal to n minus 1 when x is equal to 1 and when x not equal to 1, then the functional value is 1 minus x raised to power n over 1 minus x. Is the function continuous at x is equal to 1? So let us discuss the continuity of this function at the point x is equal to 1. सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की, और उसके बाद निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू. फिर उसके बाद देखते हैं क्या लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही, तब हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे. सो
सबसे पहले हमने लिमिट फाइंड आउट की है इस फंक्शन की एट x टेंड्स टू 1 पर। तो x टेंड्स टू 1 का मतलब होता है कि x 1 को अप्रोच कर रहा है, मीन्स x एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं है। अगर x 1 के इक्वल नहीं है तो जो फंक्शनल वैल्यू है वो आपको ये वाली कंसिडर करनी है। सो राइट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की एन ओवर 1 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो वहाँ पर ए रेज टू पावर एन माइनस एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला आप लगाओगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स के एंड सो ऑन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, कैंसलिंग 1 माइनस एक्स ऑन बोथ साइड्स and putting x is equal to 1 here, then we have 1 plus 1 plus 1 plus 1 and so on, n times adding 1 and we will get limit is equal to n। अब हमारे पास लिमिट इस फंक्शन की 1 पॉइंट पर n आई है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू जो है f ऑफ 1 की वैल्यू हमें गिवन है n माइनस 1। तो लिमिट ऑफ the function and functional value both are not equal, means the function is not continuous at the point x is equal to 1। और जब हमारे पास ये केस होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मीन्स ये होता है कि अगर हम फंक्शन को थोड़ा सा रीडिफाइन कर दें तो इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मीन्स यदि हम इस फंक्शन को यहाँ पर n-1 की जगह मैं रीडिफाइन करके n लिख देती हूँ तो उस केस में फंक्शनल वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल हो जाएंगे, मीन्स ये फंक्शन फिर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मीन्स अगर हम फंक्शन को रीडिफाइन कर देते हैं तो ये डिसकंटिन्यूटी जो है वो रिमूव हो जाती है। अब ये अनदर एग्जांपल है, इसके अंदर फंक्शन आपको 0 पॉइंट पे ब्रेक करके दिया हुआ है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 फंक्शनल वैल्यू इज 0 एंड व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 फंक्शनल वैल्यू इज दिस वन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कोस 2x का, विच इज़ इक्वल टू √2 साइन x आ जाएगा ओवर x। तो ये फंक्शन आपके पास गिवन है। अब हमें 0 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि मोड का यूज़ हो रहा है और मोड के केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम इवेल्युएट करेंगे तो इसको एक्सपेंड करके वैल्यू आई है -√2 आफ्टर सॉल्विंग इट। और जब राइट हैंड लिमिट हमने एक्सपेंड की तो वैल्यू आई है √2। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही हैं बट बोथ आर नॉट इक्वल, मीन्स इट इज़ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। So this is another example of discontinuity of first kind, and in the same way we can also discuss discontinuity of second kind also by with the help of some examples. So we will discuss it later. Thank you very much.